हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। एंड दिस इज अनुज एंड टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ डिस्कशन with you all on one of the press release which has been released by IBBI on 31st of January 2025. So this is a कह सकते हो कि 1 month old press release, and the press release is quite important because in this press release, several important aspects has been discussed, uh, which has been already made amendment made by the IBBI in liquidation process regulation, and there is a recorded video. I have recorded a video on the amendment in the liquidation process regulations and uploaded my channel, but I thought I should also have a video on press release of the Insolvency and Bankruptcy Board of India on 31st of January 2025. So basically, amendment might be complicated while just going through with the amendment, because you have to just know each and every provisions, uh, existing provisions, and then new provisions, and so that might be a little bit difficult for the new viewers. So I thought the press release should be uh, discussed in a very simple manner and a simple way, so everyone can just have a clear view of the what amendment has been made in the liquidation process regulation. So आज हम लोग बात करेंगे प्रेस रिलीज के ऊपर। एंड ये जो प्रेस रिलीज नंबर है, you can check out here, and this is the press release IBB/PR/2025/2. So this is a press release number of IBBI, and this one is the date 31st of January 2025 press release date. Let's have a look on the subject line of the press release. यहाँ पे Insolvency and Bankruptcy Board of India amends the Insolvency and Bankruptcy Board of India Liquidation Process Regulation 2016 and Insolvency and Bankruptcy Board of India Voluntary Liquidation Process Regulation 2017. So press release में कहा जा रहा है कि IBBI ने Liquidation Process Regulation 2016 and Insolvency and Bankruptcy Board of India Voluntary Liquidation Process Regulation 2017 में अमेंडमेंट की है, राइट। हमने दोनों ही वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन प्रोसेस में जो अमेंडमेंट आया उसके ऊपर वीडियो बना करके मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा है। इफ यू वांट टू जस्ट हैव अ लुक ऑन दोज अमेंडमेंट, देन यू कैन चेक आउट माय चैनल. There you will be getting a detailed video on the amendment. Now, the Insolvency and Bankruptcy Board of India has notified the Insolvency and Bankruptcy Board of India Liquidation Process Amendment Regulation 2025. Amendment Regulation 2025. And Insolvency and Bankruptcy Board of India Liquidation Process, Voluntary Liquidation Process, Second Amendment Regulation 2025, amended Voluntary Liquidation Process Regulation dated 28th of January 2025. तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिक्विडेशन प्रोसेस एंड वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस की जो अमेंडेड रेगुलेशन है ऑफ 2025 इज published with effect from 28th of जनवरी 2025. प्रेस रिलीज थोड़ा सा बाद में आया, अमेंडमेंट पहले आया था। तो नॉर्मली होता क्या है कि पहले अमेंडमेंट आती है एंड देन आईबीबीआई मोस्ट प्रोबेबली ऑन द सेम डेट और द नेक्स्ट डेट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डेट प्रेस रिलीज लेकर के आती है, और उस प्रेस रिलीज में ये बताया जाता है कि द प्रपोज अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव है, क्या अमेंडमेंट है, उसकी समरी तौर पे बना करके प्रेस रिलीज इशू की जाती है। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट केस में देख रहे हैं कि आईबीबीआई ने 28th ऑफ जनवरी को अमेंडमेंट लाई एंड सब्सिक्वेंटली ऑन 31st ऑफ जनवरी 2025 को क्या किया, प्रेस रिलीज लेकर के आया और तमाम जो अमेंडमेंट आई है उसको काफ़ी स्ट्रक्चर्ड एंड इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है। सो ये तो हमारी फर्स्ट पैरा था। सेकेंड पैरा में क्या कहा जा रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं। द अमेंडमेंट विच कैम इन टू immediate effect.
seek to enhance the efficiency. We will have to note this one. Enhance efficiency, transparency, and integrity of the liquidation and voluntary liquidation process while addressing uh, earning emerging challenges. Sorry, while enhancing or adhering emerging challenges. देखो गाइस, दो चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्लीकेबिलिटी अप्लीकेबिलिटी इन जो डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज अमेंडमेंट, जो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस और लिक्विडेशन प्रोसेस में जो अमेंडमेंट आया है उसकी अप्लीकेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं. तो वो इमीडिएट इफेक्ट से अप्लीकेबल है, बिकॉज जिस दिन ऑफिशियल गजट में इसको इशू कर दी जाती है और जो डेट मेंशन किया होता है जो अमेंडमेंट के ऊपर, वो डेट 28 जनवरी 2025 है. तो वी कैन से दैट कि जो अमेंडमेंट आई है वो इमीडिएट इफेक्ट से अप्लीकेबल है. दैट इज ऑन 28 जनवरी 2025. ठीक है, तो इमीडिएट इफेक्ट से अप्लीकेबिलिटी है. सेकेंड, द most important aspects which has been adhered by the IBBI in the proposed amendment is that to ensure, or you can say enhance the efficiency. Guys देखो, ये जो चाहे वो सीआरपी प्रोसेस हो, चाहे वो लिक्विडेशन प्रोसेस हो और वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस हो, हम लोग स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट तभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हमारा प्रोसेस बहुत ही इफिशिएंट, क्विक मैनर में ऑपरेट किया जाए, एफिशिएंट तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए. यदि कोई सीआरपी असाइनमेंट हो या फिर वॉलंटरी लिक्विडेशन की असाइनमेंट हो या लिक्विडेशन की असाइनमेंट है, यदि हम लोग एफिशिएंटली टाइम बाउंड मैनर में उसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी कोड की ऑब्जेक्ट है वो हार्म होती है, उसको हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं. सो थिंग इज दैट entire process under the code should be ensured completed in a very efficient manner. Second most important aspect is transparency. As we know that every process, either that's the CIRP process, liquidation process, voluntary liquidation process, PPIRP, and इंसॉल्वेंसी, पर्सनल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की जो प्रोसेस है, प्री पैक्ट की जो प्रोसेस है, और भी अदर जो प्रोसेस हैं, सभी प्रोसेस में दे आर द सो मेनी स्टेक होल्डर्स, number of stakeholders are there. So thing is that the process should be completed and executed in a manner where there is greater transparency. All the stakeholders should be kept informed. सभी stakeholders को पता होनी चाहिए कि what are the going in the process. ठीक है, how the process are being operated. सो जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है ना, तो कहीं ना कहीं द जो कॉन्फिडेंस होते हैं स्टेक होल्डर्स की, दैट इज स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक आईबीबीआई एंड आईपीएस एंड other government authorities, everyone can repose confidence in the process and the matter. तो पर्पस यही है कि ये जो हमारा अमेंडमेंट है उसका पर्पस यही है कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से बढ़ाया जा सके. प्रोसेस को जो चेंजेस हैं वो इस तरीके से लाया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर की जा सके. राइट. सेकेंड वन, इंटीग्रिटी ऑफ द इंटीग्रिटी. ठीक है, तो इंटीग्रिटी को भी किस तरीके से इंश्योर किया जाए, ठीक है, इसके ऊपर भी बल दिया गया है. तो कह सकते हो कि जो हमारा अमेंडमेंट लाया गया उस अमेंडमेंट को थ्री एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख करके लाया गया है. आप अब बोलो क्या वो तीन एस्पेक्ट्स हैं. तो इसको हम लोग इस तरीके से सम अप करेंगे. जो हमारा वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर अमेंडमेंट लाया गया है, लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर अमेंडमेंट लाया गया है, इन प्रोसेस के अंदर अमेंडमेंट का जो मुख्य ऑब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्ट ये है कि इंश्योर एफिशिएंसी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर इंटीग्रिटी. गाइस, तीन चीजों को इंश्योर करना है. ठीक है. नेक्स्ट, द की हाइलाइट्स ऑफ द अमेंडमेंट आर एज फॉलोज. अब हम लोग देखेंगे कि जो अमेंडमेंट लाया गया है उसका क्या की हाइलाइट्स है. राइट. तो इसे यहाँ पे देखते हैं. 3.1, स्ट्रेंथनिंग द ऑक्शन प्रोसेस. स्ट्रेंथनिंग द ऑक्शन प्रोसेस. देखो,
ऑक्शन प्रोसेस क्या होता है? Although this might be known to all the some of the viewers may not aware about the uh, what is the e-auction process. So जनरल तरीके से हम इस पे बात करें तो देखो गाइज, जो लिक्विडेशन प्रोसेस होती है ना, एलपी हम लोग जिसको कहते हैं, इस प्रोसेस के अंदर यही होता है कि कंपनी के ऊपर जितने भी डेट्स हैं, ठीक है, उन सभी डेट को इन द फॉर्म ऑफ क्लेम हम लोग इनवाइट करें, ठीक है। जब हमारे पास क्लेम आ जाएगा तो वी विल जस्ट चेक आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द क्लेम्स, and secondly we will have to also prepare a liquidation state by which we can know that what are the total value or state of the corporate debtor, and जब हमारे को क्लेम का डिटेल्स पता चल जाता है एंड टोटल एसेट्स जो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट है उसका पता चल जाता है, तो हमारे को क्या होता है कि जो क्लेम सबमिट किए गए हैं, जो लाइबिलिटीज हैं कंपनी के ऊपर, है ना, उसको किस तरीके से पे किया जाए। तो उसका सिंपल वे आउट है कि जितने भी एसेट्स हैं कंपनी की, उसको क्या किया जाएगा, ई ऑक्शन किया जाएगा। ई ऑक्शन का मतलब जनरल तरीके से समझो कि उस एसेट्स को बेचा जाएगा, ठीक है। बेचने के बाद जो पैसे आएंगे, ठीक है, जो भी प्रोसीड्स आती है, उस प्रोसीड्स को प्रायोरिटी पेमेंट के तौर पर, जो प्रायोरिटी पेमेंट होती है जैसे कि सीआरपी कॉस्ट, लिक्विडेशन कॉस्ट, इन तमाम कॉस्ट को मीट आउट करने के बाद जो प्रोसीड्स बचते हैं, दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स हैं जिनको पेमेंट करना है कंपनी को, सीडी को, उनको पे कर दी जाती है। एंड फॉर द मैनर और किस तरीके से पेमेंट होगा, उसके लिए हम लोगों को सेक्शन 53 जो है वाटरफॉल मैकेनिज्म दी गई है आईबीसी के अंदर, वो सेक्शंस को देखना होगा। वो सेक्शन हमारे को बतलाएगी कि जो पेमेंट है, जो प्रोसीड्स आ रही है कंपनी के अंदर, वो प्रोसीड्स को किस तरीके से पे किया जाएगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, और कितना अमाउंट पे की जाएगी, किस तरीके से पे की जाएगी, कैसे की जाएगा। वो इंटायर थिंग हैज बीन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो द सेक्शन 53, then you can check out my other channel. I have already recorded a detailed video on that, and that's also on my channel, right? तो यही है कि स्ट्रेंथनिंग द ई ऑक्शन प्रोसेस। नाउ 3.1 क्लॉज से क्या कहते हैं उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। देखो, क्लॉज 3.1 सब क्लॉज ए हमारे को ये बतलाती है प्रोस्पेक्टिव वीडर। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव वीडर? ये जो प्रोस्पेक्टिव वीडर टर्म है ना, उसका मतलब prospective bidders means the person who is willing to some participate in the auction process, जो अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं that such bidder is having interest, is willing to participate in the auction process, तो हम लोग उसे prospective bidders के नाम से बुलाते हैं आईबीसी के अंदर, ठीक है। are now given more time to participate in the process from 14 days to about 30 days by streamlining the verification process, thereby facilitating wider participation। देखो, जो प्रोस्पेक्टिव रीडर्स हैं उनको थोड़ा पहले, जो बिफोर द अमेंडमेंट जो टाइम दिया जाता था, वो 14 डेज था। 14 डेज के अंदर जो प्रोस्पेक्टिव रीडर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिड में, उनको 14 दिन का टाइम दिया गया था। उस 14 डेज के अंदर आप सारा जो प्रोसेस है, फॉर्मेलिटीज है, if you just want to go for the due diligence of the assets of the CD, you want to go for the physical inspections and तो वो सारी चीज़ों के लिए जो टाइम दिया गया था दैट वाज 14 डेज। तो कह सकते हो कि कोई भी एसेट्स हैं, यदि एसेट्स हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप ई ऑक्शन के थ्रू एक्वायर करना चाहते हो और उसकी ड्यू डिलिजेंस करना चाहते हो, तो माइट बी 14 डेज इज वेरी लेस टाइम। तो कह सकते हो कि जो बीडर्स होते थे वो इफेक्टिव तरीके से उसका ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाते थे, उस एसेट्स की वर्थ एसेस नहीं कर पाते थे। तो it was felt that ki why not the bidder should be given some extra time so they can have a
clear view or clear assessment of the assets in which he is going to participate in the bid process. तो इससे क्या हुआ कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सकेगा। अब होता है क्या, अब इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिड प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज उनको ये पता चल जाएगा कि जो एसेट्स में हम पार्टिसिपेट करना जा रहे हैं, जिस बिड प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग तमाम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जुटा सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग इनफ टाइम टू फाइनली पार्टिसिपेट इन द बिड। तो कह सकते हो कि इससे पार्टिसिपेशन बढ़ी जाएगा। टाइम यदि ज़्यादा दिया है तो मार्केटिंग प्रॉपर हो जाएगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिड में पार्टिसिपेट करेंगे और इससे क्या होगा, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी हो सकती है, राइट। नाउ वी हैव अ लुक एट द क्लॉज 3.1 क्लॉज बी। इसमें क्या बताया जा रहा है कि द लिक्विडेटर शैल मेंशन इन द ई ऑक्शन नोटिस दैट द अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी, इन शॉर्ट इसको हम लोग EMD कहते हैं, अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी, इन शॉर्ट EMD। E stands for earnest, M stands for money, D for deposit। ठीक है, earnest deposit money of the successful bidder shall be forfeited if found ineligible during the e-auction process। देखो, ई ऑक्शन प्रोसेस डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है किसके लिए, जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स होने वाले हैं उनके लिए। हमारा ई ऑक्शन प्रोसेस डॉक्यूमेंट जो होता है वो डिटेल टर्म एंड कंडीशंस, रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी एंड एवरी एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू द बिड प्रोसेस इज देयर। ठीक है, तो जो भी बिडर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ई ऑक्शन प्रोसेस में, दे आर सपोज टू गो थ्रू विद द प्रोसेस डॉक्यूमेंट। ठीक है, नाउ देयर इज ऑल्सो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट ई प्रोसेस डॉक्यूमेंट शैल क्लियरली contain provisions that the EMD, earnest deposit money submitted by the uh, bidders, सक्सेसफुल वीडर शैल बी फोरफिटेड। यहाँ पे जो वर्ड्स यूज किया गया है, फॉर द सक्सेसफुल वीडर्स। ठीक है, सक्सेसफुल वीडर्स जो वो वीडर्स होंगे हु मीट्स द इंटायर एस्पेक्ट्स, ठीक है, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ई ऑक्शन प्रोसेस। तो वो जो सक्सेसफुल बीडर्स हैं उनके EMD मनी को फॉरफिट कर लिया जाएगा। कब फॉरफिट किया जाएगा, फॉरफिट करने का मतलब जब्त कर लिया जाएगा। कब किया जाएगा, इन केस ही इज इनएलिजिबल ड्यूरिंग द ई ऑक्शन प्रोसेस। ऐसा पाया जाता है कि जो बीडर है, सक्सेसफुल बीडर्स है, वो इनएलिजिबल है, ही इज नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ई ऑक्शन प्रोसेस। इन दैट सिनेरियो जो उनकी क्या होगी, EMD मनी होगी, EMD डिपॉजिट्स होगा, उसको क्या कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा। नाउ अब देखो, आई थिंक ये तो क्लियर है, इसमें कोई इशू है नहीं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए बताना, डिस्कस और करना चाहूँगा जो हमारे न्यू व्यूअर्स होंगे। आई थिंक दे मे हैव टू फेस डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड दिस। तो देखो गाइस, होता क्या है कि EMD बेसिकली एक कंडीशंस होता है, ठीक है, जो कि SEC मेंबर्स इंश्योर करते हैं कि ई ऑक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए हाउ मच EMD अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी, एक टोकन मनी कह सकते हो, कि नीड टू बी given by the prospective bidder for participating in the e-auction process। ठीक है, तो वही है कि जो सक्सेसफुल बिडर का EMD होगा उसको फोरफिट कर लिया जाएगा उस केसेस में जब वो इनएलिजिबल पाए जाते हैं ड्यूरिंग द ई ऑक्शन प्रोसेस। अब इससे ये होगा कि जो बिडर्स होगा, सक्सेसफुल बिडर्स बनते हैं, दे हैव अ क्लियर नॉलेज अबाउट दैट कि हमारे को एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है उसको मीट करना है। यदि हम एलिजिबल पाए गए तो हमारे EMD जो होगा वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो अब उससे क्या करेगा कि वो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करेगा, अपनी असेसमेंट खुद कर लेगा कि वेदर ही इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ई ऑक्शन प्रोसेस और नॉट। ठीक है, तो एक अच्छी बात हो गई। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द Para 3.1 Clause C. The prospective bidders must submit necessary documents, including declaration of the eligibility under Section 29, as specified in the e-auction notice on the electronic auction platform or as mentioned in the e-auction notice। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिशन को लेकर के बात कही गई है।
इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रोस्पेक्टिव बिडर्स होंगे मस्ट इट्स नेसेसरली सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन ऑन द फ्रॉम द एलिजिबिलिटी, डिक्लेरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 29A। सेक्शन 29A एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को डिसाइड करता है कि हु इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑप्शन प्रोसेस। सो there is a requirement that the prospective bidder shall have to submit the declaration of eligibility under section 29, and that has to be submitted on the auction platforms or as mentioned in the auction process notice। उसमें जो जिस तरीके से मेंशन होगा, जो भी मैनर होगा, इधर कि आप मेल पे सबमिट कर दोगे या फिर हार्ड कॉपी दे दोगे या फिर ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट कर लोगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ई ऑक्शन नोटिस की जो हमारा ई ऑक्शन नोटिस प्रिपेयर किया जाता है, ई ऑक्शन प्रोसेस डॉक्यूमेंट होती है, उसमें बताया जाएगा, है ना, राइट गाइस। तो दिस वन इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर, इसमें भी कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, राइट। The liquidator is required to verify the eligibility of the highest bidder within 3 days of the auction and consult the stakeholders consultation committee SSC on auction result। देखो, दो बातें इसमें कही गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हाईएस्ट बीडर होगा, H1 कह सकते हो, हाईएस्ट वन, ठीक है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो जाता है? लिक्विडेटर। सो लिक्विडेटर शैल हैव टू वेरीफाई द एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बिडर विद इन 3 days फ्रॉम द फाइनली ऑक्शन। जिस दिन वो H1 डिक्लेयर किया जाता है उसके 3 दिन के अंदर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा लिक्विडेटर एंड कंसल्ट द स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी ऑन द auction result, ठीक है। once the verification is done by the liquidator within 3 days from the declaration of the H1, liquidator will shall consult to the SSC within at the earliest about on the outcome of the uh, e-auction, ठीक है। तो क्लियर सी बात है कि जैसे ही H1 बीडर को डिक्लेयर कर दिया गया उसके 3 दिन के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लो। H1 बीडर का, सभी बीडर्स का वेरीफाई करने की जरूरत है नहीं, जो H1 होगा उसी का करना है, एंड देन आप SSC से कंसल्ट कर लो, राइट। This is also clear. Now have a look at the 3.1 clause E. Uh, this clause states that if the highest bidder H1 is found ineligible, the next highest eligible bidder H2 may be considered subject to consultations with the stakeholders consultation committee। Guys, देखो है क्या कि अब H1 डिक्लेयर कर दिया जाता है और विद इन 3 days जो लिक्विडेटर है वो क्या कर रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ verification of such documents, liquidator finds that H1 bidder is ineligible. Some conditions are not met by the H1 bidders. In that scenario, what will happen? Second highest bidder, जो H1 से थोड़ा नीचे है, जिसको हम कह सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट बीडर, हम लोग उसका डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे एंड विल कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली टू द SSC that H1 bidder is not eligible, he is not meeting certain requirements of the eligibility norms. So the second highest bidder is this one and he is also and he is meeting the eligibility norms। तो ये चीज हमारे को SSC को कम्युनिकेट करना है। Now SSC will decide whether to consider the H2 bidder second highest bidder or not। ये सारे कॉल किसके ऊपर आ जाएगी? वो SSC के ऊपर आ जाएगा। बट ये जो है तमाम प्रोसीजरल नॉर्म्स हैं जो अभी हमने क्लॉज 3.1 के अंदर ये देखा, ये सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है फॉर ई ऑक्शन प्रोसेस, राइट। एंड नाउ ये सारे जो चीजें यहाँ पे बताया गया है गाइस, वो एग्जिस्टिंग प्रोविजन में नहीं था। यहाँ पे बहुत ही इसको कंप्लीटली कह सकते हो कि चेंज किया गया है और इससे जो कह सकते हो कि रीडर की पार्टिसिपेशन है ना वो बढ़ गया है, ट्रांसपेरेंसी भी इससे ज़्यादा इंश्योर हो गई है और चीज़ें बहुत ज़्यादा इफिशिएंट बना दिया गया है बाय दिस अमेंडमेंट नाउ।
Let's have a look at on the submission of the final report 3.2. Submission of final report क्या होता है guys? देखो final report होता क्या है? As name itself suggests that final report liquidation process और voluntary liquidation process दोनों ही process में बनाया जाता है। और ये फाइनल रिपोर्ट कौन बनाता है? तो लिक्विडेटर बनाएगा, जो वॉलंटरी लिक्विडेटर है वो बनाएगा। और इस फाइनल रिपोर्ट में कह सकते हो कि क्रक्स होती है कि इंटायर प्रोसेस को किस तरीके से कंप्लीट किया गया है। सारे फिगर्स को देने हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कितने रिसीट्स आए, कितने पेमेंट आए, किनको पेमेंट की गई है, कब की गई है, ठीक है। टाइमलाइन, डिटेल टाइमलाइन होंगे। तो final report is the concluding report which is to be submitted to the adjudicating authority as well as IBBI and IPA. And on the basis of that final report, NCLT will proceed for dissolution or the closure of the जो भी ये प्रोसेस चल रहा है। यदि कंपनी को डिसॉल्व की जानी है तो एनसीएलटी विल हैव अ क्लियर डिस्कशन ओवर द फाइनल रिपोर्ट को कंसीडर करेगी एंड देन वो चीज़ों को कंपनी को या डिसॉल्व करना है तो डिसॉल्व किया जाएगा, या फिर रिसोल्यूशन हो रही है या इन द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और किसी भी तरीके से, तो उसको क्लोजर वहां पे किया जाएगा, ठीक है। तो फाइनल रिपोर्ट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द लिक्विडेटर after successful conclusion or कह सकते हो conduct of entire liquidation process but before dissolutions, and that final report is to be submitted to the NCLT along with the resolution application और closure application जो भी applicable होता है उसके साथ submit किया जाएगा। And along with submission of the NCLT, it is also required to be submitted to the IBBI and the respective IPAs to whom the insolvency professional is the member, right? नाउ मैंने तो जनरल चीजें आपको बता दिया। नाउ अब इसमें इस फाइनल रिपोर्ट के बारे में क्या क्या है? लिक्विडेटर आर नाउ मैंडेटेड, इट्स मैंडेटरी, लिक्विडेटर आर नाउ मैंडेटेड टू फाइल अ फाइनल रिपोर्ट इंक्लूडिंग फॉर्म एच with the adjudicating authority when a scheme of compromise or arrangement under section 230 of the Companies Act 2013 is approved. Implementing this measure will improve accountability and regulatory oversight, right? देखो गाइस, तो फाइनल रिपोर्ट दो चीज के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल रिपोर्ट सेकंड वन इज द फॉर्म एच। फॉर्म एच क्या है? फाइनल रिपोर्ट तो आपको पता चल गया होगा कि दिस इज द कंक्लूडिंग रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द लिक्विडेटर फॉर द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस एज वेल एज फॉर द लिक्विडेशन प्रोसेस, एंड दिस हैज टू बी सबमिटेड टू द एनसीएलटी, आईबीबीआई एंड आईपीए, ठीक है। ये चीजें हम लोग लिक्विडेशन के लिए और वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए फॉलो करते आ रहे थे। फॉर्म फाइनल रिपोर्ट भी बनाते थे, फॉर्म एच भी बनाते थे और सबमिट भी करते थे। बट नाउ द थिंग इज दैट कि इफ देर इज स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, जो सेक्शन 230 की कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम्स होती है वो अप्रूव होता है, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट स्कीम अप्रूव हो जाती है, तो क्या उस केसेस में भी हमारे को फाइनल रिपोर्ट बनाना है, फॉर्म एच बनाना है? तो गाइस आंसर इज वेरी मच यस, बिकॉज स्कीम का अप्रूव होना इज ऑल्सो अ क्लियर इंडिकेशन दैट द जो प्रोसेस है, लिक्विडेशन प्रोसेस है, उसका क्या हो रहा है, कंक्लूजन हो रहा है, वो एंड हो रही है। चाहे वो रिजोल्यूशन के थ्रू हो, चाहे वो रेजोल्यूशन के थ्रू हो। रेजोल्यूशन मीन्स थ्रू द अप्रूवल ऑफ अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, किसी भी तरीके से होती है। तो हमारे को फाइनल रिपोर्ट तो बनाना ही बनाना है, एंड फाइनल रिपोर्ट के साथ साथ फॉर्म एच बनाना है, बिकॉज फॉर्म एच विल टेल अस कि कौन से टाइम पे कब कब एक्टिविटीज हुई है, उसका क्या एक्चुअल टाइम था, क्या स्टैट्यूटरी टाइम लाइन्स थे और क्या एक्चुअल टाइम लाइन है। तो फॉर्म एच विल इज अ कंप्लाइंस, कह सकते हो कि सर्टिफिकेट होता है। तो उससे क्या पता चलेगा हमारे को कि डिटेल टाइम लाइन पता चलता रहेगा, ठीक है। तो फॉर्म एच एंड फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना है जब स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट अप्रूव हो रही है उस वक्त भी, ठीक है। होप यहाँ पे हमारे को क्लियरिटी मिल चुकी होगी और इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं नहीं, राइट गाइस। नेक्स्ट जो हमारा क्लोज है 3.3, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट एंड कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट। आपको पता है कि आईबीबीआई दो अकाउंट को ऑपरेट करती थी, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट एंड ये जो कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट और कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट जो आईबीबीआई ऑपरेट करती थी, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया
के अकाउंट में ओपन किया जाता था. IBBI will continue to manage the corporate liquidation account and corporate voluntary liquidation account in separate bank account within the scheduled bank. ठीक है. It proven to be efficient and expeditious claim processing and overall fund management. तो कह सकते हो कि अब इस अकाउंट को, जो कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट है और कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट है, नाउ इट कैन बी ऑपरेटेड विद द शेड्यूल्ड बैंक के साथ ही अकाउंट ओपन करके ऑपरेट किया जाता है. देयर इज नो नेसेसरी रिक्वायरमेंट नाउ दैट हैज टू बी ऑपरेटेड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, बिकॉज वहाँ पे उसकी जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर इस अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस को फॉलो किया जाता था. दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये अमेंडमेंट को लाया गया है, जिससे कि ये कह सकते हो कि प्रोसेस ज़्यादा एक्सपीडियस तरीके से पूरा किया जा सकता है. राइट नाउ we will have look at the amendment number 3.4, realization of uncalled or unpaid capital. अनकॉल्ड और अनपेड कैपिटल कुछ ऐसे प्रोसीड जैसे कि वी आर अवेयर दैट इन द वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, ठीक है, जो प्रोसीड्स होते हैं कुछ टाइम तो हमारे पास जिसकी इंटाइटलमेंट होते हैं वो आते नहीं, पहुंचते नहीं है क्लेम करने के लिए कि उनका क्लेम बनता है. तो उस केसेस कुछ एक प्रोसीड्स अनपेड बच जाते हैं, अनकॉल्ड बच जाते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस कैन नाउ बी कंप्लीटेड इवन इफ देयर इज अनकॉल्ड कैपिटल. ठीक है, अर्लियर ऐसा था कि जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाता वी कैन नॉट गो फॉर द डिसोल्यूशन, बट नाउ थिंग इज क्वाइट क्लियर that if there is uncalled capital, ठीक है, there are adequate safeguard is already in the regulation to protect the creditors and provisions for the realization of uncalled capital or unpaid capital contributions may only be result in avoidable delays. तो इस तरीके से अब यहाँ पे है कि कोई अनकॉल्ड कैपिटल है तो उस कैपिटल को कैसे हम कहाँ पे कौन से अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, और उसको यदि आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी someone come and say that ki I am entitled for that proceeds, then in such a scenarios he can claim that proceeds from the respective account, from the account where the proceeds are lying. तो उसके लिए certain procedures है. There is the forms under the voluntary liquidation process. In that forms, that person will have to provide complete details and submit to the respective authorities, जो कि IBBI है, वहाँ पे सबमिट करेगा और वहाँ से वो पैसे को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. So we can say that there is a proper mechanisms under the regulation itself which clearly indicates that what will be the procedures if there is uncalled capitals, and if someone claims that he is the right person to whom the proceeds unclaimed should be distributed, then he will have to prepare the documents by which he can withdraw the funds. So things are very much proper now, and there is provisions in the liquidation process regulation, voluntary liquidation process regulation. So this will result unnecessary delays because इसके वजह से नहीं हो पाता था, प्रोसेस को डिसॉल्व नहीं किया जाता था, because there is a proceeds which has to be distributed that might be the ground earlier for delays, but now things are very much settled, clear. uh, तो आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो क्वाइट क्लियर, इसमें भी हमारे को कोई डिफिकल्टीज है नहीं. Now next one, next para is filing of the forms. The insolvency professionals are now required to submit the details related to the liquidation and voluntary liquidation process in electronic forms available on the IBBI portal. To ensure the timely submissions, it has been notified that the filing delays will attract late fees of 500 per form per calendar month from the date of to be notified later on. As guys, आप लोगों को पता होगा कि IBBI recently in the month of June 2024 there issued a circulars in the voluntary liquidation process and liquidation process where it has been clearly mandated that the in both the process liquidation और voluntary liquidation process के अंदर जो liquidator होगा they are supposed to submit certain forms on the portal of the IBBI. ठीक है, जो कि लिक्विडेशन 4 फॉर्म्स के बारे में बताया गया है, लिक्विडेशन फॉर्म 1, लिक्विडेशन फॉर्म 2, लिक्विडेशन फॉर्म 3, लिक्विडेशन फॉर्म 4. ठीक है, एंड द डिफरेंट टाइमलाइंस, डिफरेंट डेट्स हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सबमिशन ऑफ दोज फॉर्म्स. इसी तरीके से वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस में भी VL1, VL2, VL3, VL4 फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड उसके भी अपनी टाइमलाइंस है. एंड
The liquidator is supposed to do the filings of all those forms on the portal of the IBPI by login by entering his login credentials. जो IB का अपना login details होता है IBPI पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, जब वहाँ पे आप उसके थ्रू एक्सेस करोगे तो वहाँ पे दिख जाएगा लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए और वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए जो फॉर्म्स है उसका किस तरीके से सबमिट करना है। तो उसके अलग अलग टाइमलाइंस दी गई थी और रिक्वेस्ट किया गया था कि इस फॉर्म्स को फाइल किया जाएगा फॉर द पास असाइनमेंट, कंक्लूडेड असाइनमेंट्स एज वेल एज ऑनगोइंग प्रोसेस एंड द असाइनमेंट्स विच विल कम इन फ्यूचर। उसके साथ एक चीज और ऐड ऑन किया गया है कि इफ the filings could not be completed within the stipulated timelines or filing is not done by the um, जो timeline, then there will be a late filing fee that is of the 500, and certainly there will be GST as well on that. So approximately 18% would be the GST on the 500. So 590 you have to make payment if you are not able to submit the forms on the time. So guys, please please be ready for the another fine which you have to pay to the IBBI for non-compliances or delay compliances, right? So, guys, one thing I would also like to add on here is that I have recorded a detailed video on the filing of the forms and the liquidation process and voluntary liquidation process. And if you are willing to have a look on those videos, so please go on the my channel. There you can get the detailed process of the filing the forms, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, entire things you will be getting in that video. So please have a look on that as well. Thank you. Next, disclosure of the tax deduction. Disclosure of the tax deduction, one of the important amendment. Regulation now required the detailed disclosure of the tax deduction by the liquidator before depositing unclaimed dividends and undistributed proceeds into the corporate liquidation account or corporate voluntary liquidation account. From Forms have been updated to include fields for the tax deduction confirmation, applicable provisions and regions of unclaimed dividend or undistributed dividend. Guys देखो, जो unclaimed proceeds होते हैं ना, uncalled proceeds जो होते हैं, उसको डिपॉजिट करने से पहले ना, जो लिक्विडेटर है एक फॉर्म दी गई थी। उस फॉर्म्स में वो तमाम डिटेल्स हमारे को मेंशन करना होता था कि कौन कौन सी पर्सन जो हैं आर इंटाइटल्ड टू फॉर द अनक्लेम्ड प्रोसीड्स, उनका नाम होता था, पैन नंबर होता था और सारे डिटेल्स कितने अमाउंट हैं, ठीक है, वो मेंशन करके हम लोग आईबीपीआई को दे देते थे, जिससे कि आईबीपीआई को एक रिकॉर्ड रहता था कि ये पर्सन है जिनके पैसे पड़े हुए हैं और वो पैसे को कहाँ पे डिपॉजिट कर देता है, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट और कॉर्पोरेट वॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट जो भी है वहाँ पे डिपॉजिट कर दी जाती थी। नाउ वो जो फॉर्म्स था जिसमें हम लोग वो डिटेल्स कम्युनिकेट करते थे टू द आईबीबीआई, जो लिक्विडेटर कम्युनिकेट करता था तो आईबीबीआई को, उस फॉर्म्स में चेंज लाया गया है। चेंजेस ये लाया गया है कि जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स था उसमें सर्टेन इंफॉर्मेशन को एड ऑन किया गया है कि टैक्स डिडक्शन, इफ देर इज अ टैक्स डिडक्शन ऑन द सच पेमेंट, जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत पर्टिकुलर डिडक्शन की जानी है, ठीक है, अब वो कितना की जानी है, कौन से सेक्शन में की जानी है, उसका भी डिटेल्स वहाँ पे आपको डाल करके देना होगा। बिकॉज आईबीपीआई इज नॉट गोइंग टू हैव अ लुक ऑन कि उस पर कौन सा टैक्स अप्लीकेबल है, कौन सी टैक्स डिडक्ट करनी है, टीडीएस डिडक्ट करनी है या कुछ और डिडक्ट करनी है। तो यदि वो कुछ करना है तो लिक्विडेटर हैज टू डू दैट, उसमें वो वहाँ पे बताना पड़ेगा। सो वाइल making payment to the person claiming from the uncalled capital, तो वो सारे डिडक्शन हो पाए, ठीक है। तो गाइस ये हमारा अमेंडमेंट था। नेक्स्ट जो फोर्थ है, अमेंडेड लिक्विडेशन रेगुलेशन एंड वॉलंटरी लिक्विडेशन आर अवेलेबल ऑन द बोर्ड। यस, अमेंडेड रेगुलेशन आप आईबीबीआई की साइट पे आपको मिल जाएगा। गाइस ये छोटा सा प्रेस रिलीज था, ये जो प्रेस रिलीज है बहुत ही अच्छे तरीके से आईबीबीआई ने प्रेजेंट किया है सिंपल लैंग्वेज में, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको ये तो पता चल जाएगा कि क्या क्या अमेंडमेंट लाया गया है, ठीक है। तो गाइस ये मेरा पर्पस यही होता है कि जो अमेंडमेंट है आईबीबीआई के साइट पे आ रहा है या प्रेस रिलीज आ रहा है, सर्कुलर आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए उसको वीडियो के फॉर्म में लेकर के आऊँ, सो एक अवेयरनेस क्रिएट हो। एंड मेरा तो सिंपल से ही मानना है कि वीडियो में किसी के लिए वो नहीं बना रहा, सिर्फ मैं अपने आप को अपडेट करने के लिए बना रहा हूँ। तो जब मैं इस वीडियो को जो अमेंडमेंट है प्रेस रिलीज को पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और
यूट्यूब पे डाल देता हूँ, जिससे कि मुझे लगता है कि मेरे साथी जो आईबीसी में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं और या फिर आईबीसी कोड की जानकारी रखना चाहते हैं, उनको भी मेरे इन वीडियो से कोई हेल्प मिल जाए। तो ये लिए मेरे लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकता है कि अपने नॉलेज को अपडेट करने के साथ साथ मैं नॉलेज शेयरिंग का भी काम कर रहा हूँ। सो गाइस, आई नीड योर सोर्स ऑफ, कह सकते हो कि अप्रेस, मतलब एक तरीके से आपकी लाइक्स और comments are the source of inspiration for me to just have a record because ये काफी बुकेस तरीके से मैं यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, because there is no presentation, it's completely from the PDF uploaded on the site of the IBBI, but very much hopeful that you can understand, uh, ये चीज़ें सारी डिस्कशन से क्लियर हो जाती होगी। थैंक यू वेरी मच।